ناظرین نظم سرائے، آپ کے لیے دعائے خیر و برکت۔ نظم سرائے کا کاروان آج آپ کو ٹیکسلا کی سب سے قدیم آبادی کے آثار کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسے سرائے کھولا کہتے ہیں۔ جی ہاں، سرائے کھولا ہی وہ مقام ہے جہاں سے محکمہ آثار قدیمہ کو 3000 سال قبل مسیح کی آبادی کے آثار ملے۔ یہ مٹی کے ایک بلند ٹیلے پر واقع تھے۔ اب یہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، البتہ یہ ٹیلہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ یہاں سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں کی جانچ پڑتال سے اندازہ لگایا گیا کہ اس آبادی نے طوفان نوح کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ دریائے سوان کے کنارے جس ابتدائی انسان کی کھوپڑی ملی، اس کا تعلق بھی شاید اسی قدیم آبادی سے رہا ہو۔ اسلام آباد سے آتے ہوئے مارگلہ سے گزرتے ہی ٹیکسلا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مارگلہ سے لگ بھگ 3 کلومیٹر کے بعد بائیں ہاتھ پر جو جدید آبادی دکھائی پڑتی ہے، اسی کے بیچ میں وہ ٹیلہ ہے جو قدیم آبادی کا مسکن رہا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے گاڑی کسی گلی میں کھڑی کر کے پیدل اس ٹیلے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ ٹیلے کو ارد گرد کی آبادی نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ٹیلے تک رسائی کے لیے خطرناک عمودی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے۔ لیجیے، ہم ٹیلے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں جگہ جگہ قدیم عہد کے برتنوں کی ٹھیکریاں بکھری پڑی ہیں۔ بہت سے نوادرات محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں سے دریافت کر کے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھوا دیے ہیں۔ اس جگہ کی دریافت 1968 میں ہوئی تھی۔ ناظرین، اگرچہ سرائے کھولا میں اب قدیم عہد کی کوئی عمارت موجود نہیں ہے، سب وقت کے ہاتھوں ملیا میٹ ہو چکا ہے، تاہم اس ٹیلے پر اب بھی گزرے وقتوں کی کچھ ٹھیکریاں زمین میں مدفون نظر آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ٹوٹے ہوئے برتنوں کی اس ٹھیکری پر نقش و نگار بھی نظر آ رہے ہیں۔ سرائے کھولا کی آبادی نے 3 ادوار دیکھے ہیں۔ ہر عہد سے متعلقہ اشیاء عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ پہلے عہد کے لوگ پتھر کے اوزار اور مٹی کے برتن بناتے تھے۔ برتنوں پر چمکدار مادہ لگانے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ دوسرے دور کے حوالے سے یہاں سے پتھر کی کلہاڑیاں، دیگر اوزار، پتھر کے منکے اور اناج رکھنے کے لیے بڑے بڑے مٹکے ملے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق برتنوں کی ساخت سندھ کے شہر کوٹ ڈیجی سے دریافت شدہ برتنوں سے مماثلت رکھتی ہے۔ سرائے کھولا میں تیسرے دور کے ایک قبرستان کی کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی فرعونیوں کی طرح اپنے مردے کے ساتھ روزمرہ کی اشیاء اس کے ساتھ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ ہار، گلو بند بھی قبروں سے دریافت ہوئے ہیں۔ چوتھے زمانے کو ہم آریاؤں کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، جب وسط ایشیا سے آریاؤں نے ہندوستان میں جلغار کی۔ یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 پیشتر بنتا ہے۔ ناظرین نظم سرائے، 20-25 برس پیشتر یہاں آثار قدیمہ والوں نے ایک تختی بھی نصب کی تھی، جو اب غائب ہو چکی ہے۔ بہرحال، سرائے کھولا کا یہ ٹیلہ حکومت پاکستان کی تحویل میں ہے، مگر مناسب دیکھ بھال سے محروم ہے۔ سرائے کھولا کی سیر کے دوران ٹیکسلا کے کھنڈرات کے ماہر جناب مالک الاشتر ہمارے ساتھ تھے۔ ان سے اس علاقے کی قدامت کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین نظم سرائے، اس وقت ہم ٹیکسلا کی قدیم ترین آبادی سرائے کھولا میں موجود ہیں۔ سرائے کھولا ٹیکسلا کی ان قدیم آبادیوں میں سے ہے جس نے طوفان نوح کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس وقت یہاں کے کھنڈرات نیست و نابود ہو چکے ہیں اور یہاں پر صرف ایک ٹیلہ ہے جس پہ کے نیچے آثار قدیمہ دفن ہیں، یا لوگوں نے یا آثار قدیمہ نے یہاں سے اہم نوادرات نکال کر کے عجائب گھر کی زینت بنا دیے ہیں۔ فی الحال ہمیں یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ وہ جس پہاڑی پر ہم کھڑے ہیں، یہی پہاڑی وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر قدیم انسان رہا کرتا تھا، اور اسی انسان کے حوالے سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس قدیم انسان کو پنجاب ایکس کہا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ایک اسپیشل چائلڈ مل گیا، اس سے ہمیں یہاں پر لے کے آیا، اس نے ہماری رہنمائی کی۔ ہم اس سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اگرچہ یہ منہ سے بول نہیں سکتا لیکن اشاروں میں بتا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر لوگ آتے ہیں کھدائی کرنے کے لیے؟ آتے ہیں؟ کیا نکال کے لے جاتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ جی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور وہ جیولریز ان کو ملتی ہیں، ایئر رنگز ملتی ہیں، رنگ فنگرز یہ بھی ملتی ہیں، اور یہ ہار ملتی ہیں، اور وہ کھدائیاں کرتے ہیں
अभी मैं देखा कि ये पुरानी ठीकरियाँ मुझे मिली हैं। मुझे लगता है कि ये भी पुरानी आसार कदीमा की पुरानी ठीकरियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन की टूटी हुई। ये देखिए मुझे मिट्टी में से मिली थी। मालिक इश्तर, आप क्या समझते हैं कि ये ठीकरियाँ उसी कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, मैं इनको अगर आप देखें ठीकरियों को, तो उसका जो टेक्सला का हमारा कदीम तरीन जो रिमेन्स हैं हाँ। या खुदाइयाँ जो की गई हैं, वो ये टीला इस वक्त मौजूद है। अच्छा, और ये 3100 कबल मसीह से लेके 2800 कबल मसीह तक आबाद रहा। वाह, ओह इतना पुराना, वाह जी, और वही 3100 कबल मसीह आपने दुरुस्त फरमाया कि तूफ़ान नूह का ज़माना है। जी जी तो जी, इन्होंने ऐसे जो यहाँ के जो लोग थे, दे माइट हैव विटनेस दैट वेरी तूफ़ान, ही। जी जी बिल्कुल ठीक जो है। स्टार आया था उस ज़माने का, जो बिग स्टार था। हाँ हाँ, तो ये उसी ज़माने में शायद उन्होंने कोई वहाँ से कोई माइग्रेशन की हो, जो मैस माइग्रेशन हुई होगी, तो शायद यहाँ आके वो लोग भी आबाद हो गए हैं। अच्छा, मालिक इश्तर, मैं बहुत पुराने मुझे नहीं याद कि कब मैं 15-20 साल पहले भी यहाँ पर आया था, तो मैंने यहाँ देखा था कि आसार कदीमा के एक बोर्ड भी लगा हुआ था और एक छोटी सी पत्थरों की दीवार भी थी। वो अभी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही कि तो जी। वो कहीं गायब हो गई, गिर गई, तो उसको नहीं तामीर किया गया दोबारा निशानी के तौर पर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ था और इर्द गिर्द इसको उन्होंने सारा इंक्लोजर बना हुआ था। इसको उस ज़माने में तो इसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया हुआ था। लेकिन लगता है कि आजकल जो हैं हमारे जो म्यूज़ियम वाले, जो यहाँ के रैकी है या जो गवर्नमेंट है, वो इससे उसने आंखें मूंद ली हैं और आबादी का जो बढ़ता हुआ सैलाब है, उसने चारों तरफ से इसको घेर लिया। इवन आज रास्ता भी नहीं था, आपने देखा है कि हम कितनी मुश्किल से यहाँ पे चढ़े हैं। जी जी और बिल्कुल ऐसा ही है। वो कीचड़ भी था और गिरते गिरते भी बचे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि हमें इनकी आंखें ज़रा खोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ मुकामी आवाम को भी और लोगों को भी चाहिए कि टेक्सला का पुराना एसेट है, हाँ। यहीं से उनकी वो जड़ें इसमें पोशीदा हैं, तो जी, इसको जी। प्रोटेक्शन के लिए उनको सामने आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसकी इस टीले के इर्द गिर्द जो है ना, चारों तरफ इसको खानदार तार लगा देनी चाहिए, ताकि लोगों की जो, जैसे कि अभी बच्चा बता रहा था, यहाँ पर लोग आके खुदाई करते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती हैं उनको, तो फिर इस चीज़ से भी बचाना चाहिए इस टीले को। जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे, या वो कहाँ अपने वो ट्रेस बैक करेंगे अपने हिस्ट्री को। तो मैं जिस तरह का आपको बता रहा था कि ये 3100 से 2800 तक था। उस वक्त लोग जो यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उसमें हमें पत्थर के औजार मिलते हैं और हड्डियों के औजार मिलते हैं। वाह, सही है। और जो बर्तन थे वो उस वक्त वो हाथ से बनाए जाते थे, अभी चाक का वजूद नहीं आया था। चाक कमाने का वो जी, वो नहीं था। वो हमें मिलता है 2800 से 2400 का। ठीक है, वो जो कबल कोडिजियन पे जो पीरियड था उससे रिजेबल करते हैं। ठीक है। उस ज़माने में फिर हमें यहाँ से ये जो थे पीतल के हमें मिलते हैं, वो बर्तन भी और चीज़ें भी, और उसके अलावा हमें फिर पत्थर का वो ज़माना वो शुरू हो जाता है, पत्थर के बने हुए घर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। सही। और वही ज़माना है जब यहाँ पे इनके लगता है कि इनके सेंट्रल एशिया से ताल्लुकात भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ लैपिस लज़ूली हाँ, वो भी मिलते हैं उनके जो पर्ल से बहुत यहाँ खूब, पे। बहुत खूब, सही। वाह। तो ये वो तजारती उसके साथ इनके रवाबित रहे हैं। ज़ाहिर है ये टेक्सला को तो इसमें तमाम सेंट्रल एशिया के साथ और इधर के अफगानिस्तान और जो हमारी शुमाली रियासतें हैं जी, ये उनके कश्मीर साथ तो वगैरह आपस इनके में साथ रही हैं। ये जुड़ा हुआ था, जी, इसकी बिल्कुल। मरकज़ी हैसियत है। अच्छा, उसके बाद फिर तारीख खामोश हो जाती है 2400 जब कबल मसीह में आके। फिर हमें 1000 कबल मसीह में फिर यहाँ पे आसार जो यहाँ पे ये जो आपको खुदाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये वो गोरस्तानी कल्चर है, जैसे गंधारा गोरस्तानी कल्चर कहते हैं। वाह, तो यहाँ पे वो कब्रें दरियाफ्त हुई, ये जिनमें वो मुर्दा दफन किए जाते थे, एक साइड पे लिटा के टांगे फोल्ड होती थी, हाथ इस तरह सर के साथ उन्होंने उनके लिए वो बर्तन भी और दीगर काइंस की चीज़ें भी और ज्वेलरी जैसे भी, फ्राइन वो नस्ल भी। के हम देखते हैं जी, उस हराम तरह नस्ल की में भी रखे ख्वातीन जाते के साथ थे। ज्वेलरी होती थी और जो मर्दों के मुजस्मे होते थे, जो बॉडीज़ होती थी, उनके साथ उन्होंने वो प्याले, कोई बर्तन, कोई और इस किस्म की चीज़ें वो रख दिया। इवन वो कोई जो लड़ाई के वो जो औजार होते थे वो भी साथ वो भी साथ ही रोज़मर्रा के रखी जाती थी। और उसी ज़माने में हमें यहाँ पे वो जो टचर मिले हैं, वो घोड़ों के भी मिले हैं और लोहे के चीज़ें भी मिली हैं। तो लगता है कि ये वो जो आर्यंस का जो था 1000 कबल मसीह वाला आना जाना, तो वो ये उनका शायद उनकी भी पेशरोर यहाँ पे रही। बहुत खूब, बहुत खूब। और उसी ज़माने में फिर चाक का भी इस्तेमाल हमें ये देखें, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, ये बाकायदा चाक पे बना ये हुआ वैसे है। तो टेराकोटा है। जी है टेराकोटा, लेकिन अब ये चाक पे महसूस होता है कि बराबर इसकी गोलाइयाँ हैं, रेडियस हैं हाँ। और इसमें काला कलर है,
जी जी, ये और चाक पर बनी जी, महसूस होती ये है। चाक पे उस वक्त वजूद शुरू हो गया था। ये 2800 से 2400 कबल मसीह में ये भी चाक का देखिए, वजूद आ ये गया। देखिए, ये बहुत खूबसूरत टेराकोटा है जी, इसमें। इसमें आपको इसके ऊपर वो आपको फिगर्स भी नज़र आएंगी, हाँ। और इसके अलावा वो दीगर वो बनी हुई हैं इसके पौधों के पत्तों के निशान, और दीगर उन्होंने ज्योमेट्रिकल फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाया करते थे वो ज़माने में। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें देखिए यहाँ पर अचानक मिल गई चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर। वैसे तो खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस ज़ेर ज़मीन। तो मालिक साहब बहुत अच्छी मालूमात आपने फराहम की नज़म सराय के नाज़रीन और सामीन को। हम इस अफसोस के साथ इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं कि ये इलाका, ये जगह जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये इस वक्त टेक्सला का कदीम इलाका है। यानी भिड़माउंट से भी पुराना, अगर आप नहीं हो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो भिड़माउंट से भी पुराना शहर ये। जी बिल्कुल। देखिए, ये मैं तो यूँ कहूँगा कि ये जिस तरह ये बच्चा हमें वो स्पेशल चाइल्ड मिला है, इसी तरह का ये एक स्पेशल एरिया है, लेकिन ये भी इस बच्चे की तरह वो गूंगा बहरा हो चुका है। और बोलने वाले लोग हैं वो उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है, चारों तरफ से खुदाइयाँ कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसे करना चाहिए। के तवज्जुह से महकमा सारे कदीमात से गुजारिश करेंगे कि इस इलाके को की हिफाजत के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और इस टीले के इर्द गिर्द जो है तार लगाई जाए, ताकि बैरूनी लोगों को जो यहाँ पर मुहिम जोई के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें तलाश करने के लिए आते हैं, उससे इस इलाके को महफूज रखा जाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा असासा है टेक्सला की ज़मीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ये बच्चा बता रहे हैं जी कि आजकल भी हम इसी तरह के वो जो डिज़ाइन है हम घरों में जब बनाते हैं, मिट्टी के बनाते रहे हमारे बाबा जी, तो उसी तरह के वो मुख्तलिफ वेसेस बनाते थे और इसी तरह के डिज़ाइन थे जो देखिए, ये साथ ही नीचे भी दबा हुआ है इसी तरह का। ये इसी देखिए, तरह मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, ये वैसे डिज़ाइन पर धारियाँ बनी हुई हैं। ये भी ठीक करिए नीचे। कितनी टूटे फूटे बर्तन यहाँ पर डेब्रिस पड़ी हुई हैं। जी अ, चारों चूंकि- अतराफ में जी ये जो पूरा हमारा असासा बिखरा हुआ है जी, इस पे काफ़ी आपको तहकीक की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों को चाहिए कि देखें किस तरह शेप दी हुई है इन्होंने, कि डिफरेंट टाइप की इस पे वो तस्वीरें बनी, डिज़ाइन बने हुए हैं, जोग्राफिकल इस पे वो डिज़ाइन बनाए हैं इन्होंने। वाह, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, फिर पेंट है, फिर ये देखिए जी, ये इस पे डिफरेंट कोई अशकाल बनी हुई है। इसकी थिकनेस देखें, रेगुलर थिकनेस है। तो ये भी इसी तरह का उनका कोई बर्तन है जो उनके इस्तेमाल का, और बेशुमार डेब्रीज हैं जो चारों तरफ बिखरी हुई हैं। नाजरीन, आपने दरख्तों पर परिंदों के घोंसले तो देखे होंगे। मिट्टी के इस टीले पर परिंदों ने सुराख करके अपने मस्कन बनाए हुए हैं। ये देखिए, इन सुराखों में परिंदों के ख़ानदान आबाद हैं। नाजरीन नज़्म सराय, उम्मीद है आपको टेक्सला के इस उजड़े दियार की अक्सबंदी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।